डीमल्टीप्लेक्सर डिस्कशन करने के लिए हमको पहले मैं फिर से और एक बार तुम लोगों के लिए डीकोडर को फिर से रिकैप करूंगा, बिकॉज मैंने बोल दिया था कि डीमल्टीप्लेक्सर एंड डीकोडर circuit is almost same with minor modification is there, but the decoder and demultiplexer their circuit are exactly or almost you can say 97-98% same, but they are technically or logically they are different. So I will try to prove today how a decoder can be called a demultiplexer. Similarly, how a demultiplexer can also be called a decoder. Actually, their circuit diagram, the representation is same, but only one difference is there, is the logical interpretation is different. So I will design a very simple decoder circuit as we designed yesterday, simple 2x4 decoder circuit, and after that we will modify it very little, and I will try to prove how the same circuit gets converted into a demultiplexer. Same thing, okay? So, so if any question comes, whether a decoder can be converted into demultiplexer, answer will be yes. A decoder can be converted into a demultiplexer. Similarly, a demultiplexer can also be converted into a decoder with very minor change. Okay, almost everything will be same. So let's see today how we can do so. So to do that, so today's topic is demultiplexer, but to design a demultiplexer, we have to understand the decoder again, because demultiplexer is nothing but the logical representation in different way of the same circuit of decoder. So before we start, जैसे मैं हमेशा एक ब्लॉक डायग्राम बना के देता हूं कॉम्बिनेशनल लॉजिक का, similarly we can say a demultiplexer has only one input and 2 to the power n output. So remember this. This is the block diagram of a DMUX. Demultiplexer has only one input and 2 to the power n output. So input and output I am saying in terms of exactness. एग्जैक्ट की अगर बात करेंगे तो इनपुट एक ही होता है, एग्जैक्ट माने ओनली वाया वन इनपुट वी प्रोवाइड द डेटा, बट देयर मे बी अदर टाइप्स ऑफ इनपुट्स जिससे हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं. सो व्हेनेवर आई से इनपुट एंड आउटपुट, यू मस्ट नॉट टेक इट इन एब्सोल्यूट फॉर्म, बट यू शुड टेक इट इन perception. That is, input and output means when I'm talking about input and output, I am meaning that the input is in exact form. Exact means in terms of data. There are two types of inputs in any computer system. ये याद रखना जिंदगी भर कि one is called data and the other is called control. ठीक है? So we always provide these two type of input to our computer system. So data means the raw information which the computer requires to process it for computational purpose. But what is the control? Control is another type of input data which is used to control the activity of the CPU to process the data. Okay, so the control actually helps to process the data. So when I am talking about input, you should think that I am talking about the data, not in terms of control, because just I have told that control and data, both type of things can be considered as the input signal to the computer. So in a DMUX, so I am just again repeating whatever we have studied in last week. Is in a decoder, I have n input and 2 to the power n output. I hope you should remember this block diagram. This is very important. So this is for decoder. What is the encoder? Encoder is just opposite to decoder. Why? Because encoder takes 2 to the power n output and it produces n output. Okay, so it takes 2 to the power n input and n output. So encoder and decoder, they are just just complementary or opposite opposite structure of with each other. So in this case, so these two things we have already studied. The decoder has only n inputs, and obviously this thing we should not forget
that in decoder the output is maximum 2 to the power n. Similarly, for encoder the output is minimum n. Okay, don't forget this. So again I'm repeating that for decoder I have n input and maximum 2 to the power n output, and in case of encoder, okay, decoder में n input है, maximum 2 to the power n output. Maximum का मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं. Similarly, encoder में क्या होगा? There will be 2 to the power n inputs and minimum n output. मतलब n से कम नहीं होगा, n से ज्यादा आउटपुट हो सकता है, but not lesser than n. Okay, so these two are the just simple recap, just remind you for your reminding purpose. Now for demultiplexer is mainly is different than decoder and encoder in terms of logical perspective. So in terms of logically अगर सोचेंगे तो then demultiplexer is different than those things. But अगर circuit और hardware की basis में अगर बात करें, then we can find that decoder and demultiplexer are very close to each other. We can also call them the sister and step sister kind of relation. They have similar kind of attributes. Okay, same kind of thing, almost same, little difference. So now we will design the 2x4 decoder, and I will again convert that decoder into a demultiplexer. So let's see. We'll take the very simple example of 2x4 decoder that we did yesterday. I will do it again for your better understanding. So I am trying to design a 2x4 decoder circuit diagram. So that means I need 2 inputs and obviously I need 4 output because I am trying to make 2 into 4 decoder. So 4 output means जितना output होता है decoder में उतना AND gate डालना पड़ता है. So 1 AND gate, 2 AND gate, 3 AND gate and 4 AND gate. So number of output is same as number of AND gates in the decoder. ये सब दिमाग में डालना पड़ेगा, ठीक है? The first one is D0, the next output is D1, the next output is D2, the next output is D3, like that. Similarly, what we can do, so I have already designed 4 AND gates, each having 1 output and denoting different output values. 2 input X and Y. And 0 का मतलब मैं फिर से समझा देता हूं. 0 मतलब 0 0, 1 मतलब 0 1, 2 मतलब 1 0, 3 मतलब 1 1. So the first value is represented by X, second value is represented by Y. So X का value 0 का मतलब क्या है? X bar. Y का value 0 का मतलब क्या है? Y bar. So I am talking these things again and again so that all this concept become very clear to you. So that means ये AND gate में क्या करना पड़ेगा? X bar और Y bar को AND करना है. So to do that, I have to first put 2 NOT gates here. One. তোমরা একটু চুপ করবা, তোমরা নিজেরা কথা কম বলো, এটা একটু কথা বলো, কোনো অসুবিধা নাই. So from X you can get X bar here, from Y you can get Y bar here. So ultimately for D0 मेरा क्या वैल्यू चाहिए? D0 मतलब 0 0. 0 0 means X bar Y bar. तो X bar कैसे आएगा? X bar Y bar. You are finding it is very simple concept. Just if you think in this way, then it is not a very difficult thing to do. Next for D1, D1 मतलब 0 1. 0 किसका वैल्यू है? X का. 1 किसका वैल्यू है? Y का. तो 0 को हम बोलेंगे X bar, 1 को बोलेंगे Y. So it is actually X bar Y. So X bar is already there. तो उसको डालो and Y का नीचे से लाइन लाके डाल दिया. That's it. Very easy. Next is D2. D2 means 2. 2 means binary 1 and 0. So 1 is the value of X, 0 is the value of Y. So it will be X, Y bar. So I have to take X from here. I am taking it from here. Okay, and just putting it here. So I am putting X here and Y bar. Y bar is already available to us. From here I will take the Y bar and put it here. That's it. So this value will become X, okay, and Y bar. And the last one is D3. 3 in terms of binary is 1 1. That is X and Y. So X I am already getting via this the black line that I have just drawn. And from here I am taking another line, I am putting here. So here, so by this line I am getting X,
and from the below line I am taking another, I'm drawing another line to this particular AND gate. I am getting XY. So this is a very basic and simple diagram for a 2x4 decoder. Similarly, you can design 3x4, 3x8, 4x16, any other type of decoder. हम कल ये भी डिस्कस किया था how we can reuse same structure multiple time to scale it up. बड़ा सर्किट को बड़ा करने के लिए ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि तुमको हर बार नया नया डिजाइन करना पड़े. No need. You can design a basic design, you can design a basic circuit and just repetitively use it to scale it up. So it will be easier to handle the system. Okay, so this is a simple 2x4 decoder structure. Now we also used another thing जिसको हमने बोला था enable yesterday. So E is just acting like enable. An enabler line जो था, that was a very important control line. Why we call E as control line? Because if I make enable value 0, मैं फिर से ड्राइंग कर लेता हूं एक ही चीज, कल के जैसा ड्राइंग कर लूंगा. This red color is representing the E line and this input is going to every AND gate. Okay, in this way. So this E has the vital role to play in this case. So I am again repeating, if E is 0, that means just फिर से समझो, अगर E का वैल्यू मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूं तो क्या होगा? This 0 will go through this particular line and 0 will come here at each of the input of the AND gate. तो 0 into anything, 0 के साथ किसी का भी डॉट करो, रिजल्ट क्या आएगा? It is always 0, है ना? Because we know x dot 0 is 0 as per Boolean algebra. So that means it is inactive. तो अगर हम सर्किट को बंद करना चाहते हैं या हॉल्ट करना चाहते हैं फॉर सम टाइम, नॉट बंद, शट डाउन बोलना गलत होगा, वी कैन से इट्स अ हॉल्टिंग सिचुएशन, वी हैव पॉज्ड इट, सब जस्ट थोड़े टाइम के लिए इसको हॉल्ट करना है, देन यू हैव टू प्रोवाइड E is equals to 0, देन नथिंग विल बी देयर. इनपुट में कुछ भी डालो, you will always get all the output value 0. ठीक है, but this is for inactive state, so this is not of our job. तो अगर हमको काम कराना है, सर्किट से हमारा काम करना है, तो E का वैल्यू क्या करना पड़ेगा? अगर E का वैल्यू है 1, then whatever value we will get, we know that if I AND 1 with any other logic value, it can be x, y, x plus x, anything, किसी के साथ भी अगर तुम 1 को AND करो, इसमें कोई नुकसान नहीं है, there is no harm in it. So x 1 dot something is that thing only. So that means there is no loss of the information. इनपुट में जो इंफॉर्मेशन था आउटपुट में वही मिलता है ना? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. So this is actually active state. Okay, so both the states can be controlled by the external signal, जिसको हम बोलते हैं E, जिसका कंप्लीट फॉर्म है enable, और जिसको हम control signal भी बोलते हैं. So in this situation, what we can see, I can see there are two inputs, एक का नाम है X, एक का नाम है Y, जिसके थ्रू सिर्फ डेटा फ्लो हो रहा है. There is another type of input जिसका नाम है E, इसके थ्रू कंट्रोल फ्लो हो रहा है. Okay, now you are getting the concept how data and control both can act as the input to any digital system. X and Y are acting as a simple data and E is working as a simple control element. Obviously it is not part of the circuit, हम जबरदस्ती बाहर से इसको अटैच कर दिया so that I can control the circuit from external circuitry. Mainly these kind of things are done by the control unit. CPU के अंदर में CU control unit होता है और arithmetic logic unit होता है. So these things, this controlling job is purely handled by the control unit of the CPU. सिर्फ कंट्रोल यूनिट ही इसको कंट्रोल करता है. सीपीयू का मतलब पूरा सीपीयू कंट्रोल नहीं करता है, हम बोलने के समय बोल देते हैं जरूर सीपीयू, बट सीपीयू मींस आई एम मीनिंग ऑलवेज मीनिंग सीयू ओनली. कंट्रोल यूनिट does this controlling mechanism. Okay, so that means it can either make this decoder in halt state or it can make it in active state. So both this thing can be done by using the E. So if E is 0, it is in halting state. If E is 1, then whatever value you give, accordingly you get the output. Done. So now कल भी मैंने डिस्कस किया था और फिर से मैंने डिस्कस किया, बार बार करने से क्या होता है, दिमाग खुल जाता है. नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट डिकोडर. ठीक है,
So this is the decoder that I am drawing. तुम बुक में अगर सर्च करोगे then you will find they have used NAND gate. बुक में तुमको NAND gate से आकार का मिलेगा. हाँ, that we can do for practical purpose, but समझने के लिए this is enough for understanding. तुम गेट कोई भी लगाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now let's see. Okay, in this case now we drawn the truth table yesterday. We can draw it again today also to understand how it is working. So let us draw the truth table. So how many inputs are there? There are technically 3 inputs. Obviously not are all of our importance. लेकिन क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखते हैं हम उसको इनपुट बोलते हैं, राइट साइड में जो भी लिखते हैं उसको हम आउटपुट बोलते हैं. दिस इज दैट आई मेक यू क्लियर वेरी अर्ली. नाउ आई एम डिजाइनिंग द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस 2/4 cross decoder. So in this truth table, what is happening? Just see how many inputs are there? 3 inputs, E, X and Y. And how many outputs? 4. D0, D1, D2, D3. Done. तो हम कल भी एक चीज डिस्कस किए थे कि इफ यू पुट E is equals to 0, E का वैल्यू अगर 0 डालो, उसके बाद तुम X और Y में 1 डालो, 0 डालो, कुछ भी मतलब नहीं है. इट इज, वी डोंट केयर, बिकॉज एवरी टाइम यू विल ओनली गेट 0, बिकॉज E is ANDed with the AND gate. AND के साथ E को कनेक्शन कर दिया है. E में अगर 0 है तो 0 के साथ कोई भी वैल्यू हो X Y में कोई मतलब नहीं है. It is always 0. So this is the inactive state or halt state. Okay. So except this, now अगर मुझे इसको काम कराना है, if I want to make it active, तो क्या करना पड़ेगा? E का वैल्यू हमेशा 1 रखना पड़ेगा. You have to make the value of E 1. Then only this circuit will work. Otherwise the circuit will not work. तो इसीलिए मैं E का वैल्यू 1 रखा. Whenever you place E is equals to 1, at that time what will happen? XY तुम जिसके जैसे XY का वैल्यू डालोगे वैसा आउटपुट चलेगा, सिग्नल आएगा. ठीक है. तो इफ X and Y are 0 0, दैट इज 0 0 का मतलब क्या है? 0. तो D0 का वैल्यू में बत्ती चलेगा, बाकी सब ऑफ. ओके. सिमिलरली E अगर 1 रख के उस समय X का वैल्यू 0, Y का वैल्यू 1, दैट इज 1, नथिंग बट 1, तो एक नंबर D1 का बत्ती चलेगा, बाकी सब ऑफ. लाइकवाइज E को 1 रख के उस समय X का वैल्यू 1 और Y का वैल्यू 0 करो, दैट इज 2, तो D2 का वैल्यू 1 होगा, बाकी सब 0. एंड द लास्ट E का वैल्यू 1 रख के XY का वैल्यू दोनों को 1 1 करेंगे तो 3 नंबर लाइन का बत्ती चलेगा. दैट मींस D3 विल बी ऑन, अदर्स विल बी ऑफ. So this is the very simple truth table, and this portion is our active state. ठीक है ना? This is done. Now we will move toward the demultiplexer. So this is the concept of decoder. तो मैंने क्या बोला था कि डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर में सर्किट वाइज वी कैन से इट इज ऑलमोस्ट सेम, और कभी कभी 100% सेम भी हो सकता है. सो इन दिस केस आई विल ट्राई, मैंने इसीलिए इस एग्जांपल को लिया सो दैट आई कैन शो, आई कैन प्रूव यू द डिकोडर सर्किट एंड डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट इज 100% सेम, एग्जैक्टली सेम सर्किट. तो क्वेश्चन है, अगर सर्किट सेम है तो एक ही चीज का नाम अलग अलग कैसे होता है, लॉजिक अलग अलग कैसे हो सकता है ना? तो दैट वी विल सी नाउ. तो ये वाला जो ट्रूथ टेबल हमने डिजाइन किया, आई विल कीप इट एज इट इज एंड आई विल रिमूव अदर थिंग्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड. एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस सर्किट एंड आई विल ट्राई टू आई डोंट नो हाउ टू कॉपी इट. कॉपी कैसे करते हैं मुझे नहीं पता. लेट मी, इससे कैसे कॉपी करता है मुझे नहीं पता. सपोज आई एम ड्रॉइंग द सेम सर्किट हियर. अभी थोड़ा दिमाग लगाओ सब लोग, कंसंट्रेशन करो, क्योंकि हम एक ही चीज से मैं दूसरा चीज बनाऊंगा. ठीक है. नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक इट इनटू अ डीमल्टीप्लेक्सर. आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट इट. नाउ सी, आई एम अगेन ड्रॉइंग दिस सर्किट. बहुत ध्यान से देखो, मैं यही सर्किट अभी ड्रॉइंग करूंगा लेकिन दूसरी तरीके से. देखो क्या कर रहा हूं मैं, सेम सर्किट आई विल बी ड्राइंग हियर, कोई टेंशन नहीं है. देखो यहाँ पे एक्स वाई ई तीनों इनपुट था, उसमें से एक्स वाई था डेटा, मैं यहाँ पे लिख देता
हूं एक्स वाई क्या था, इट वाज डेटा, एंड ई क्या था, इट वाज कंट्रोल। ठीक, now what I will do, I will swap the concept. So what I will do, I will convert the data into control and control into data. यही वो लॉजिक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. So just we'll be using everything same, but the logically I will represent in different way. So let us see. तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये जो E है, E को मैं लेफ्ट में लिख रहा हूं as it is, no problem. सिमिलरली बहुत ध्यान से देखो, D0 D1 जैसा है मैं वैसे लिख रहा हूं, नो चेंज, सर्किट जैसा लेफ्ट में सेम थिंग आई एम ड्राइंग अगेन. कॉपी करने से अच्छा हो जाता, टाइम बच जाता. ओके, तो ई को मैंने चाहा था, तो ई लेफ्ट में क्या था, ई से सब एंड गेट में इनपुट गया था, यस और नो, तो आई एम डूइंग इट सेम. देखो ई से यहां पे गया, ई से यहां पे गया, देखो एक ही चीज है ना, हम नीचे ड्राइंग जस्ट ऊपर नीचे किया है, कॉन्सेप्ट इज सेम और नॉट. लेफ्ट डिकोडर में भी ई से सब से कनेक्शन हुआ, हाँ यहाँ पे भी कनेक्शन हुआ, एक ही तो चीज है, डिफरेंस नहीं है कुछ. अब सर्किट वाइज देयर सेम. Now I will do the modification portion here. Now what I will do, I will put X here and Y here. Now this is the modification I was talking about. But circuit is modified. No, circuit is exactly same. पहले बोला we want to अभी डेटा, पिछले सिचुएशन में क्या था डिकोडर में, E was control, XY was data. Now what will happen, E will be data and XY will be control. Now this is the logical swap we have done. उसके लिए थोड़ा सर्किट को इधर उधर किया है. It does not mean circuit is 100% same. I am trying to prove you. See, X के साथ एक नॉट गेट था, है ना, तो X के साथ एक नॉट गेट है, देखो Y के साथ एक नॉट गेट था लेफ्ट में, यहाँ पे भी Y के साथ एक नॉट गेट है, देखो देखो सेम ड्राइंग कर रहा हूं. D0 में क्या था, X बार Y बार था, है या नहीं. D0 में क्या क्या कनेक्शन था, X बार Y बार, वही मैं कर रहा हूं. X बार को कनेक्शन किया, Y बार को कनेक्शन किया. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, सेम चीज मैंने कनेक्शन कर दिया. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. थोड़ा बड़ा कर देता हूं, एंड गेट को छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर दे, ठीक है. नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेफ्ट के साथ राइट को मैचिंग करने का शुरू करो. लेफ्ट में हमने क्या किया था, X बार Y बार, हाँ देखने में क्लमजी लग रहा है, बट द लॉजिक, द सर्किट इज एग्जैक्टली सेम सर्किट वी आर ड्राइंग. राइट साइड में भी हम डीमल्टीप्लेक्सर का डिजाइन कर रहे हैं. सो इन दिस केस देखो, लेफ्ट में X के साथ एक नॉट गेट था, Y के साथ एक नॉट गेट था, तो वही हमने किया अभी भी. तो D0 में क्या था, लेफ्ट में X बार Y बार का कनेक्शन, हाँ सेम कनेक्शन किया. अभी क्या करूंगा, D1 में क्या था, X बार Y, यहाँ पे देखो X बार का तार यहां से गया, नीचे Y का कनेक्शन. अभी भी वही चीज करूंगा. D1 में क्या करूंगा, X बार देखो एंड Y, डन. दैट मींस सर्किट वाइज अभी तक सेम ही है, एग्जैक्टली डूइंग सेम थिंग वी आर डूइंग. D2 का मतलब क्या है, 1 0 1 0 मतलब X Y बार, यहां पे भी वही किया था D2 में, X Y बार, सेम थिंग वी आर डूइंग. दिस X where I am taking from here, तो ये X को डाल दिया, and Y बार I am taking from here, ठीक है, X Y बार. See, same circuit we have drawn. And the last one is D3, it is 1 1, 3 मतलब 1 1, that is X and Y. तो X से एक तार जाएगा एंड गेट में, Y से एक तार जाएगा. Now you tell me, क्या हमने दो अलग अलग सर्किट डिजाइन किया है, नो. यू कैन मैच बोथ द सर्किट. हाँ हमने थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा इधर उधर थोड़ा कर दिया है, बट सर्किट वाइज दे आर 100% सेम. अंदर में जो माल है वो एकदम सेम है. हाँ बाहर से देखने में लग रहा है कि सर्किट अलग है, नो सर्किट इज एग्जैक्टली सेम. हाँ लेफ्ट में XY को हमने ऊपर में डाला था, अभी XY को नीचे लिखा है, इससे तो सर्किट में बदला नहीं ना. सर्किट का तो वैल्यू एक ही आएगा, सेम वैल्यू विल गेट. ऊपर नीचे लिखने से क्या डिफरेंस आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सर्किट वाइज इट इज सेम, बट जस्ट बाय स्वैपिंग और जस्ट बाय चेंज दिस सिंपल मॉडिफिकेशन
ये माइनर मॉडिफिकेशन से क्या हुआ पता है? द सेम सर्किट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ डीमल्टीप्लेक्सर। यही सर्किट को मैं डीमल्टीप्लेक्सर भी बोल सकता हूं। मतलब कैसे, वो मैं अभी समझाऊंगा। नाउ आई एम ड्राइंग द ट्रूथ टेबल। नाउ दिस इज द सर्किट, इसको मैं बोलूंगा डीमक्स। साइज कितना है? 1x4। नाउ व्हाई हैव रिटन 1x4 डीमक्स? क्योंकि डीमक्स का स्ट्रक्चर क्या है मैंने बोल दिया है। डीमक्स हैज ऑलवेज 1 इनपुट एंड टू द पावर n इनपुट, n आउटपुट। 1 इनपुट का मतलब क्या है? मैंने बोला इनपुट मतलब डेटा के बारे में बात कर रहा हूं। दिस ई ऊपर में मैंने लिख दिया है, E is in term of data, that's why it is called one input. Similarly, and X and Y, these are also input, but they are controls. समझ में आया? लास्ट टाइम क्या हो रहा था? XY था डेटा, E था कंट्रोल। E खाली ऑन ऑफ करने का काम कर रहा था। अभी क्या होगा? अभी उल्टा होगा, XY करेगा कंट्रोल, E का वैल्यू इनपुट से आउटपुट की तरफ जाएगा। क्लियर? Okay, so if E is my data, so how many data I have? Only one data और two control, दो कंट्रोल है एक्स वाई, वो भी इनपुट ही है लेकिन डेटा कितना है? एक ही डेटा है। E is my actual data, एग्जैक्ट जो हम डेटा का अगर बोलेंगे तो E is my data in this case. X and Y are control data. कंट्रोल डेटा से मेरा कोई मतलब नहीं है। I'm interested in the actual data, E. Okay, now up to this you can find everything is same. लेफ्ट में डिकोडर का जो सर्किट था अभी भी सर्किट वही है, थोड़ा ऊपर नीचे करके लिखा है, ड्राइंग थोड़ा अलग से किया है, मतलब सर्किट का जो एसेंस है दैट इज एग्जैक्टली सेम। नो चेंज वी हैव डन टिल नाउ, बट लॉजिकली वी आर एस्टैब्लिशिंग समथिंग एल्स। तो मैंने क्या समझाया कि पहले का जो ई जो कंट्रोल था अभी वो ई बन जाएगा डेटा। पहले डिकोडर में एक्स वाई था डेटा, अभी एक्स वाई बन जाएगा कंट्रोल डीमल्टीप्लेक्सर में। एक ही चीज है, जस्ट स्वैप हो जाता है। At the same time, as per this block diagram, demultiplexer has only one input. हाँ, कौन सा input है यहाँ पे? E is by one input. Yes, it has only one input, and it has 2 to the power n output. Yes. Now, what is n here? n तो पता नहीं है, but remember, ये जो हमने x and y को लिखा है ना अच्छे से, these are called control lines. इसका और एक अच्छा सा एक इंग्लिश में भी हम इसको एक लैंग्वेज में बोलते हैं, we can also call it selection line. Control slash selection line. Remember this. XY को एक दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन लाइंस। एंड रिमेंबर इन डीमैक्स, मैं बड़ा बड़ा करके लिख देता हूं यहाँ पे बॉक्स करके, क्या हम डीमैक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। डीमैक्स में आउटपुट डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन लाइन, ये याद रखना, दैट्स इट। ठीक है? In case of DMAX, output depends on selection line. That means how many selection line I have? Only two, X and Y. These are my selection line. So this is the n. So how many two I have? I have n is equals to 2. समझ में आया? That is why अगर तुम ये फॉर्मूला में डालोगे आउटपुट में 2 to the power n, so n का वैल्यू है 2, so 2 to the power 2 will be 4, d0, d1, d2, d3. क्लियर? समझ में आ गया ना कि कैसे करके ये इक्वेशन को हमने एस्टेब्लिश किया। वन मतलब ई, सिंगल कंट्रोल लाइन, पहले वाला जो कंट्रोल था डिकोडर में वही अभी बन जाएगा डेटा लाइन। ठीक है? एंड देयर विल बी ओनली वन डेटा लाइन, एक ही डेटा लाइन होना चाहिए, ओनली वन। हाँ, बाकी सिलेक्शन लाइन बहुत ज्यादा हो सकता है, 2, 3, 4, 5, इट कैन बी एनी नंबर सिलेक्शन लाइन हो सकता है, बट सिलेक्शन लाइन जितना होगा आउटपुट उतना ही होगा, 2 to the power उतना होगा। So in this example, I have only 2 selection line. So n is equals to 2. So n is equals to number of selection line. मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, याद रखना। So n is number of selection line. तो how many selection line? 2. So n is equals to 2. So 2 to the power n कितना है? 2 to the power 2 is 4. So 4 is my output. हाँ, 4 output ही तो है। क्लियर हुआ? सो पहले मैं तुम लोगों को सिखाया कि कैसे मैं इस ब्लॉक डायग्राम के साथ इस स्ट्रक्चर को मैच कर पाऊंगा। देखो स्ट्रक्चर को मैंने ऑलरेडी एस्टेब्लिश करके दिया है कि ये हम एक डीमल्टीप्लेक्सर की तरह एक डिजाइन किया है, बट अभी तक हमने ट्रूथ टेबल डिजाइन नहीं किया। वंस वी डिजाइन द ट्रूथ टेबल देन एवरीथिंग विल बी क्लियर। लेट अस डिजाइन द ट्रूथ टेबल। ठीक है?
सो आई एम डिजाइनिंग द ट्रुथ टेबल फॉर, ऊपर वाला था डिकोडर के लिए, नीचे वाला जो ट्रुथ टेबल होगा दैट विल बी फॉर डी मल्टीप्लेक्सर, डी मार्क्स के लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे. तो लेट्स सी. So in this truth table, how many data I have? Only one data, E. E is my actual data. So I will write E here. Okay. Similarly, how many selection line I have? I have two selection line, X and Y. Clear? कैसे लिख रहा हूं मैं? तो E is my input. तो इनपुट को मैंने क्या किया, दो पार्टीशन में डिवाइड किया. दिस इज माय डेटा, ई इज माय डेटा. तुम ये दाग ना देने से भी होगा, मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं. सो ई इज माय डेटा, तो इसको मैंने अच्छे से सेपरेटली रखा है. एक्स वाई इज माय कंट्रोल और सिग्नल लाइन. तो एक्स वाई को मैंने अलग से लिखा है. ऑल आर इनपुट्स रिमेंबर, बट एक्स वाई आर सिलेक्शन इनपुट, ई इज डेटा इनपुट. तो डेटा इनपुट से हमारा मतलब है, तो डेटा इनपुट को अलग से लिखा है. एंड आउटपुट में क्या है, D0, D1, D2, D3 जैसा होता है, चार ही आउटपुट है, उसको लिख दिया. नाउ आई एम राइटिंग द वैल्यू. तो सिलेक्शन, तो मैंने क्या बोला था इन दिस एग्जांपल आल्सो, इफ, देखो अच्छे से देखो, अगर ई का वैल्यू तुम 0 डालोगे यहाँ पे, तो 0 सभी एंड गेट में जाएगा, है या नहीं? ओके, लेट अस राइट इट अगेन. कोई प्रॉब्लम का जाएगा नहीं है. अगर ई का वैल्यू 0 करोगे, जैसे यहाँ पे 0 का डाल दोगे जबरदस्ती, तो क्या होगा, तो ई विल गो टू एवरी एंड गेट, सभी एंड गेट के अंदर में ई 0 घुस जाएगा. तो 0 के साथ तुम किसी का भी डॉट करो, रिजल्ट क्या आएगा, इट इज ऑलवेज 0. सो यू विल ऑलवेज गेट 0. तो इफ ई इज 0, उस समय तुम सिलेक्शन लाइन का वैल्यू कुछ भी हो, सिलेक्शन का वैल्यू 1 डालो, 0 डालो, कुछ भी डालो एक्स वाई में, इट विल नॉट मैटर, ओनली द वैल्यू ऑफ ई विल बी इंपॉर्टेंट. So in that means demultiplexer में इनपुट का वैल्यू अगर 0 है, आउटपुट इज ऑलवेज 0 इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. अगर तुम एंड गेट से डिजाइन करोगे, तो मैंने फिर एक बार बोल के रखा हूं कि दिस काइंड ऑफ डिकोडर एंड डीमल्टीप्लेक्सर कैन बी डिजाइन्ड यूजिंग नैन गेट आल्सो. नैन गेट तो कोई अलग सा गेट नहीं है, आसमान में आता है, एन गेट ही है, उसके साथ एक नॉट गेट एक्स्ट्रा लगा देता है, अल्टीमेटली एन गेट ही है. तो मैं फिर से बोल के रखता हूं, डीमल्टीप्लेक्सर में का वैल्यू 0 डाल के तुमने अगर this cross marks in if e value is 1, that means थोड़ी देर पहले हम वही डिस्कस कर रहे थे, इफ e is 1 and this is the data and this whole thing 1 के साथ हम तुम किसी चीज का भी अगर डॉट करोगे, इफ यू डॉट 1 विद एनीथिंग, रिजल्ट क्या आएगा, वही वैल्यू आता है. इनपुट में जो वैल्यू दोगे आउटपुट में वही वैल्यू मिलेगा. दैट मींस 1 के साथ डॉट करने से कोई नुकसान नहीं होता है, 0 के साथ डॉट करने से सब डेटा लॉस हो जाता है, 1 के साथ डॉट करने से कोई नुकसान नहीं होता है, जो होता है सेम चीज ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम थिंग. सो यू कैन कीप इट 1 हियर. सो सपोज तुमने ई का वैल्यू 1 डाला यहाँ पे, एंड एट दैट टाइम यू मेक एक्स वाई वैल्यू 0 0. अच्छे से समझो, ई का वैल्यू 1 मतलब अब ये सर्किट एक्टिव स्टेट में है, इतना याद रखना है ना. तो डीमल्टीप्लेक्सर का फॉर्मूला लिख के रखता हूं, इफ ई इज इक्वल्स टू 0, डी मार्क्स होगा हॉल्ट स्टेट. इफ ई इज इक्वल्स टू 1, डी मार्क्स होगा एक्टिव स्टेट. आई एम जस्ट राइटिंग एवरीथिंग फॉर योर पर्पस. सो दिस इज फॉर डीमल्टीप्लेक्सर का ये लॉजिक है, ये लॉजिक भूलना मत. सो इन डीमल्टीप्लेक्सर इनपुट तो एक ही होता है, एज पर दिस डायग्राम ओनली वन इनपुट, सिंगल इनपुट, और उसका नाम है ई.
enable line, which is actually control input in case of decoder. उल्टा कोई उल्टा करके यूज कर रहे हैं. तो अगेन आई एम डिस्कसिंग जहां पे खत्म किए थे. अगर इफ यू मेक ई इज इक्वल्स टू 1, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि सिस्टम इज वर्किंग. तो 1 ई का मतलब 1 है, मतलब सिस्टम इज वर्किंग. नाउ ई का वैल्यू 1 रख के उस समय तुम अगर एक्स वाई के वैल्यू को यू कैन नाउ चेंज. सपोज एक्स और वाई का वैल्यू उस समय हमने 0 0 सेट कर दिया. एक्स एंड वाई 0 0 का मतलब क्या है? एक्स एंड वाई 0 0 का मतलब क्या है? कौन सा लाइन सिलेक्शन होगा? एक्स एंड वाई 0 0 मतलब D0, 0 0 मतलब D0 लाइन विल बी सिलेक्टेड. और D0 लाइन से कौन सा सिग्नल जाएगा? D0 लाइन से कौन सा सिग्नल जाएगा? The value of E will be propagated. The value of E will be propagated. ठीक है ना? समझ में आया तुम लोगों को? Now the value of E कैसे प्रोपागेट होगा? So E के साथ मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, जस्ट समझो, बहुत अच्छे से समझो. मैंने E का वैल्यू 1 डाल के रखा है, तो सब जगह में 1 1 1 1 वेट कर रहा है. दैट मींस दिस इज माय इनपुट. 1 को मैं E से D के अंदर में भेजना चाहता हूं. E से D के तरफ भेजना चाहता हूं. कैसे? तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि इफ यू मेक एक्स एंड वाई 0 0, इसका मतलब क्या है? D0 लाइन सिलेक्ट होता है, ये तो हमको पता ही है, हमको डिकोडर में ही देखा था. इफ यू मेक एक्स वाई 0 0 देन D0 लाइन गेट सिलेक्टेड. तो D0 लाइन में कौन सा इनपुट आता है? सी डिकोडर का ट्रुथ टेबल देखो. व्हेन एक्स वाई 0 0 और ई का वैल्यू 1, देखो सेम चीज तो लिखा है यहाँ पे उल्टा करके. तो D0 में क्या वैल्यू आएगा? इट विल बी 1 ओनली, है ना? बाकी जगह में 0 आएगा. सिमिलरली सपोज ई का वैल्यू 1 है और उस समय तुमने एक्स वाई का वैल्यू 0 1 कर दिया. 0 1 का मतलब क्या है? एक 1. 0 1 मतलब 1, दैट मींस D1 में 1 आएगा, बाकी सब जगह 0. सिमिलरली ई का वैल्यू 1 रख के सपोज तुम एक्स वाई का वैल्यू 1 0 किया, यहाँ पे 1 and 0 सेट किया तुमने, तो क्या होगा? D2 नंबर लाइन 1 होगा. करेक्ट. एंड लास्ट, अगर यू का वैल्यू 1 रख के x1 दोनों में 1 1 करोगे तो D3 नंबर लाइन सिलेक्ट होगा, है ना? दिस इज द लॉजिक. देखो ट्रुथ टेबल, नीचे का डीमल्टीप्लेक्सर का ट्रुथ टेबल है, ऊपर का भी डिकोडर का ट्रुथ टेबल है. देखने में एक जैसे ही लग रहा है ना सब कुछ. हाँ, ई को हमने वहां पे लेफ्ट में लिखा का राइट में, उससे मतलब नहीं है. आउटपुट देखो, D0 के अंदर 1, फिर D1 के अंदर 1, D2 के अंदर में 1, D3 के अंदर सेम चीज अभी भी हो रहा है. दैट मींस टेक्निकली बाहर से देखोगे तो सब कुछ एक जैसे लग रहा है, बट द लॉजिकली वी हैव डन डिफरेंट थिंग्स. क्या? वो मैं समझा रहा हूं. इन दिस केस, इन दिस डीमल्टीप्लेक्सर, हमने इनपुट किसको सोचा है? वी हैव एज्यूम्ड E टू बी माय इनपुट एंड दीज आर माय D0 D1 D2 आर माय आउटपुट. E इज माय इनपुट, एक्स एंड वाई माय सिलेक्शन लाइन. सबका अलग अलग नामकरण किया मैंने. तो E इज माय इनपुट. देखो तो बहुत ध्यान से, जब एक्स एंड वाई का वैल्यू 0 0 होता है उस समय E का वैल्यू प्रोपागेट हुआ या नहीं, इनपुट से आउटपुट की तरफ गया या नहीं. लॉजिकली समझो कि इनपुट में हमने y दिया, आउटपुट में हमने 1 मिला. 1 दिया, 1 मिला. दैट मींस 1 गेट्स प्रोपागेटेड वाया दिस सर्किट. सिमिलरली जिस समय तुम एक्स वाई का वैल्यू 0 1 डाल रहे हो उस समय इनपुट में क्या है? ई का वैल्यू 1 ही है. तो 1 कहां पे प्रोपागेट हो रहा है? D1 लाइन में प्रोपागेट हो रहा है. सिमिलरली जब तुमने इनपुट में 1 0 दिया था सिलेक्शन लाइन में, सिलेक्शन लाइन को 1 0 देने का मतलब है 2 नंबर लाइन को तुमने सिलेक्ट किया है. तो 2 नंबर लाइन पे क्या तुमने इनपुट को भेजा है? हाँ, इनपुट को देखो, ई का वैल्यू 1 था, 1 तो 2 नंबर लाइन पे भेजा है हमने. ठीक, देख के लग रहा है ना कि इनपुट को हमने आउटपुट में सेंड किया है, वैसे तो लग रहा है देख के. सिमिलरली जब एक्स वाई बोथ आर 1 1, इट मींस सिलेक्शन लाइन में हमने 1 1 दिया है. सिलेक्शन लाइन का 1 1 का मतलब है D3 3 नंबर आउटपुट लाइन को हमने सिलेक्ट किया है. इसका मतलब है इनपुट में हमने जो डेटा देंगे वो सर्किट के अंदर से होते हुए 3 नंबर लाइन से बाहर की तरफ जाएगा. तो वही हो रहा है ना. इनपुट में हमने E का वैल्यू 1 रखा था, 1 कहां पे आ रहा है? 3 नंबर लाइन पे ही तो 1 आ रहा है. ये देख के ऐसा लग रहा है ना कि हमने इनपुट को जानबूझ के आउटपुट में, पर्टिकुलर आउटपुट में सेंड किया है.
दैट मीन्स दिस इज द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। हमने तुमको लॉजिकली समझाया है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। लॉजिकली इट इज हैपनिंग लाइक दैट। तुमको देखना नहीं है कि क्या हो रहा है, तुमको देखना है लॉजिकली इनपुट में 1 था, आउटपुट में कहां पे 1 है, हाँ पहले D0 में है, फिर D1 में 1 है, फिर D2 में 1 है, फिर D3 में 1 है। दैट मीन्स एवरी टाइम आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y का मतलब क्या है, सिलेक्शन में हम वैल्यू बदल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे स्विच दबा रहा हूं उसके बेसिस में वही पर्टिकुलर बत्ती जल रहा है ना। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड डीमल्टीप्लेक्सर, नथिंग एल्स। इतना ही है डीमल्टीप्लेक्सर। that means demultiplexer is nothing but reorientation and logically represented version of decoder। डिकोडर डीमल्टीप्लेक्सर एक ही चीज है, बट लॉजिकली हमने इसको ऐसे करके इंटरप्रेट किया जैसे एज इफ ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ नया सा चीज बनाया ना। नया चीज नहीं बनाया है, नया चीज नहीं बनाया है। सेम सर्किट, सेम ट्रूथ टेबल, एवरीथिंग सेम, जस्ट लॉजिकली हमने थोड़ा लॉजिक को चेंज किया है, सम स्वैपिंग किया है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट दैट हम सिलेक्शन लाइन जिस लाइन को आउटपुट को सिलेक्ट करता है, इनपुट वही आउटपुट लाइन में प्रोपागेट होता है। ऐसे करके याद रखना है। तो सिलेक्शन लाइन का काम क्या है, सिलेक्शन लाइन सिलेक्ट्स द आउटपुट कि कौन सा आउटपुट के थ्रू इनपुट का वैल्यू बाहर की तरफ जाएगा, दैट्स इट। तो सिलेक्शन का लाइन वैल्यू अगर 0 0 है तो D0 से आउटपुट जाएगा, 0 1 D1 से जाएगा, 1 0 D2 से जाएगा, 1 1 D3 से आउटपुट बाहर की तरफ जाएगा। तो आउटपुट का वैल्यू कहां से आएगा, ऑब्वियसली इट विल कम फ्रॉम द इनपुट। इनपुट क्या है, ई है, ई का वैल्यू क्या है, इट इज ऑलवेज 1, क्योंकि हमको पता है डीमल्टीप्लेक्सर में अगर ई का वैल्यू 0 डालोगे देन इट विल हॉल्ट, ठीक है। बट इफ यू मेक ई का वैल्यू 1 देन इट विल बी ऑन, इट विल बी एक्टिव। तो हम एक्टिव स्टेट में ही काम करना पड़ेगा, इनएक्टिव करके तो काम नहीं होगा ना। यू हैव टू मेक द स्टेट एक्टिव। जब ये स्टेट एक्टिव है उसी समय तुम्हारा रिक्विजिट रिजल्ट तुमको मिलेगा। ओके, दैट मींस आई एम अगेन रिपीटिंग, सिलेक्शन लाइन का काम है टू सिलेक्ट द आउटपुट थ्रू व्हिच इनपुट विल गो आउटसाइड। मैंने तुम्हारे पास 4 दरवाजा है, तुमने एक दरवाजा से घर के अंदर घुसा, निकलने के लिए 4 दरवाजा है बाहर जाने के लिए। तो सिलेक्शन लाइन क्या है, दारवान है तुम्हारा, दारवान जिस दरवाजे को खोल देगा इनपुट उसी रास्ते से बाहर जाएगा। इतना ही तो है ना, मैं कहां से बाहर जाओगे तुम, सिग्नल को बाहर जाना सेंड करना पड़ेगा आउटपुट में। दैट इज द थिंग इज हैपनिंग। सिलेक्शन लाइन 0 0 मतलब D0 दरवाजा को खोल देना है। ऐसे करके सोचो, देन द थिंग्स विल बी वेरी इजी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा ये सब चीज। मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं उसी तरीके से सोचो। तो सिलेक्शन लाइन जस्ट सिलेक्ट्स पर्टिकुलर आउटपुट, कौन सा आउटपुट के थ्रू इनपुट बाहर की तरफ जाएगा। तो 0 0 का मतलब D0 0 समझ में आ गया होगा अभी तक, और कैसे जाएगा वो मैंने समझा दिया है कि जब XY का वैल्यू 0 0 होता है इसका मतलब D0 नंबर लाइन से आउटपुट इनपुट बाहर की तरफ जाएगा। अब देखो ठीक D0 के नीचे ही 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ऐसा लग रहा है ना देख के जैसे E का वैल्यू 1 था वो 1 ही इधर पे प्रोपागेट हुआ है। सो दिस इज जस्ट परसेप्शन, नथिंग एल्स। लग रहा है जैसे E का वैल्यू इधर से उधर जा रहा है, नथिंग एल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर का और कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है, इतना ही। दैट मींस इफ यू अंडरस्टैंड द डिकोडर then you can automatically understand the demux. Same thing, just logically we want to establish that demultiplexer में हमेशा एक ही इनपुट होता है और उसका नाम होता है enable, ठीक है। और कंट्रोल, एनी अदर कंट्रोल सिग्नल भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं enable। और वही इनपुट की तरह मैंने फिर से बोल दिया, there are 2 types of input, data and control. So when I am talking about input, I am talking about the exact data, not on control. 2 types of data will be there, input. लेकिन हम डेटा को लेके इंटरेस्टेड है, कंट्रोल को लेके नहीं थी, क्योंकि कंट्रोल से किसको जाना है कैसे जाना है उसको सब डिटेक्शन करता है, लेकिन एक्सैक्ट डेटा तो इनपुट से ही आएगा ना, इनपुट का डेटा ही आउटपुट की तरफ भेजना है। तो कल मैंने एक साइड डिजाइन करके दिया था, याद है, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। तो तुमने ऐसा लग रहा है ना कि हम डेटा एक ही डेटा तो भेज रहे हैं सर्किट के अंदर, लेकिन निकल रहा है 4, कैसे, ऐसे।
तो one data you are sending to the system and you are getting many 4 क्यू, कुछ भी हो सकता है, 2 to the power 4, 2 to the power 8, एक डेटा और दो तुम, there can be n number of output. तो कैसे होता है? ऐसे होता है. So actually the main जो कंट्रोलिंग का काम करता है डीमल्टीप्लेक्सर में, that controlling thing is the most important thing. कंट्रोलिंग जो सिलेक्शन लाइन होता है वही लोग के ऊपर ही बेसिस करके हमारा आउटपुट लाइन काउंट होता है. इन दिस केस सिलेक्शन लाइन 2 है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन n इज इक्वल्स टू 2, और हमारे इक्वेशन में लिखा है 1 क्रॉस 2 टू द पावर n. हमने यहाँ पे सिलेक्शन लिखा, सिलेक्शन लाइन कितना है? 2, तो 2 टू द पावर 2 माने 4. अगर सिलेक्शन लाइन 3 होता, 3 सिलेक्शन लाइन, देन n विल बी 3, सो 2 टू द पावर 3 विल बी 8 आउटपुट होगा. अगर सिलेक्शन लाइन होगा 4, ठीक है ना, तो दैट विल बी 2 टू द पावर 4 16 आउटपुट. तो जितना सिलेक्शन लाइन होगा 2 टू द पावर उतना आउटपुट लाइन होगा. बट इनपुट इज ऑलवेज 1, डोंट फॉरगेट इट. समझ में आया? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर. तो डीमल्टीप्लेक्सर डिकोडर सर्किट एग्जैक्टली सेम, माइनर मॉडिफिकेशन कैसे होता है मैंने दिखा दिया, जस्ट इधर उधर लिखना पड़ेगा, लेकिन इंटरनल सर्किट का डिजाइन एग्जैक्टली सेम होता है. ट्रूथ टेबल भी डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन लॉजिकल जो तुम्हारा समझने का जो बात है दैट बिकम्स डिफरेंट. कंट्रोल लाइन एंड डेटा लाइन का जो कॉन्सेप्ट है दैट बिकम्स डिफरेंट. सो लॉजिकली दे आर डिफरेंट, बट हार्डवेयर वाइज दे आर सेम. So I hope it is clear to everyone. This is the demultiplexer. इससे ज्यादा और कुछ नहीं है डीमल्टीप्लेक्सर, इतना ही है दुनिया में. तो अगर तुमको चाहिए, ऐसा सिचुएशन है कि तुमको एक ही डेटा है, एक ही लाइन से डेटा आ रहा है, और उसी लाइन को डेटा को तुम्हारे पास 25 या 26 या 27 100 आउटपुट है तुम्हारे पास, किसको दू? You can select demultiplexer for your purpose so that one data, one signal can be sent to many other signals. ठीक है, एक सिग्नल से तुम बहुत ज्यादा जगह में डेटा को अपना मर्जी के हिसाब से, एक ही सिग्नल को तुम किसी भी अपने मर्जी के डेटा को अपने मर्जी का आउटपुट लाइन से निकाल सकते हो. So this kind of solutions are mainly used in networking subject only. हार्डवेयर में इसका यूज सीपीयू में होता है, बहुत कम होता है, बट मोस्टली इट इज यूज्ड इन नेटवर्किंग. नेटवर्किंग में suppose I am getting a signal, suppose I am getting a call. तुमको एक कॉल बोल के तो कुछ नहीं होता है, एक फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल आ रहा है तुम्हारे फोन में. सिग्नल कितना आ रहा है? एक ही सिग्नल आ रहा है. यू आर गेटिंग सिंगल सिग्नल, एंड सिंगल सिग्नल को हमको अंदर में क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डिवाइड इनटू मल्टीपल फ्रेम्स. सपोज हम अगर 4G यूज कर रहे हैं तो एक सिग्नल को मैं 3-4 तरीके से डिवाइड कर सकता हूं. इट कैन बी data signal, it can be video, it can be audio, it can be message. कुछ मैसेज होता है ना, 0 भेजो तो ये होता है, that kind of controlling message can be there. तो बहुत तरीके का मैसेज मैं भेज सकता हूं. Not only data, control data can also be sent via the input lines, via the radio signals. तो उस सब जगह में डीमल्टीप्लेक्सर का मेनली हमारा जो मोडेम होता है ना, मोडेम में इसका बहुत अच्छा यूज किया जाता है. मोडेम तो सबके फोन के अंदर है, नहीं तो काम नहीं करेगा ना. मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, तो विदाउट मोडेम कोई भी डिजिटल डिवाइस काम नहीं करेगा इंटरनेट में. तो मोडेम के अंदर में डीमल्टीप्लेक्सर का एक बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस है. वहां पे हम एक ही रेडियो सिग्नल को डिफरेंट जेनर में हम उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं. यू कैन से कि ये वाला सिग्नल डेटा के लिए है, ये वाला. समझ में आया? मल्टीपल चॉइस काइंड ऑफ क्वेश्चन. मैंने ई का वैल्यू किस में फिट होगा? D0, D1, D2, D3. तुमको सिलेक्ट करना है कि D2. सपोज D2 इज फॉर डेटा, D1 इज फॉर ऑडियो, D0 इज फॉर वीडियो, D3 इज फॉर SMS. एग्जाम्पल, ठीक है, MMS, ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो किस तरीके का सिग्नल आया है, हाउ यू विल डिसाइड? यू कैन डिसाइड बाय यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर. तो इसका यूज बहुत ज्यादा होता है नेटवर्किंग फील्ड में, इसका सर्किट का बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत. So this is all about demultiplexer. इससे ज्यादा डीमल्टीप्लेक्सर में कुछ भी नहीं है. तो डीमल्टीप्लेक्सर और डिकोडर एक ही चीज है. इतना अभी तक समझ में आ गया होगा. So now this topic is cover and we'll cover the final topic of this combinational portion
एक्सेप्ट रॉम एंड पीएलए, दो एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। इट्स अ न्यू टॉपिक, ये भी आज शुरू करेंगे और मे बी विद इन सैटरडे विल कंप्लीट इट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट, मल्टीप्लेक्सर याद रखना है। बहुत तरीके का सर्किट तुमने आज तक देखा है, एडर, सबट्रैक्टर, कंपैरेटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स हम लोगों ने पढ़ाई की है। सो डिकोडर, एनकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर इज द वन ऑफ द मोस्टली यूज्ड combinational circuit, which is mostly used in CPU, inside CPU, CU, ALU, as well as in networking field. Without multiplexer, कुछ नहीं होगा। तो मैं I'm just showing you the logic. Suppose this is you, this is another person, this is another person. So there are many people, and there is only one base station who are residing and within the range of the base station. Simply, so there is a fiber optic cable चाहिए, FBC, FOC fiber optic cable से सिग्नल जा रहा है दूर में। Suppose the signal is ending up another BTS tower, इसका भी एक रेंज हो सकता है। So I am not talking about that receiver side. This is my transmission side, this is receiver. So, यहाँ पे भी कुछ डेटा हो सकता है, just leave them. रिसीवर साइड के मुझे मतलब नहीं, आई एम इंटरेस्टेड, मल्टीप्लेक्सर इज मेनली इंटरेस्टेड टू द सेंडर साइड ओनली। सपोज तुम हो ये रोल नंबर 1, दिस इज रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, सभी लोग एक ही बीटीएस लोकेशन में हो, आसपास में ही हो, एंड एवरीबॉडी इज हैविंग सम वर्क ऑन देयर स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, जो भी फोन है। तो तुम, कोई एक जन बात करने के लिए फोन कर रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई टिकटॉक वीडियो बना रहा है, एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग। सो व्हाटएवर इट इज, कोई भी कुछ भी कर रहा है। सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, एवरी डेटा फ्रॉम विद इन दिस रेंज, ऑल द रेडियो सिग्नल्स आर गेटिंग मर्ज्ड इनटू दिस बीटीएस, बेस स्टेशन में जा रहा है ना। तो बीटीएस टावर क्या करेगा, क्या सबका अलग अलग सिग्नल लेके फाइबर ऑप्टिक में भेजेगा? नो, नेवर। तो जिंदगी भर काम ही नहीं होगा। इट नेवर हैपेंस लाइक दैट। व्हाट इट डज, इट मेक्स अ बंडल की तरह सोचो। तो ये वाला सिग्नल का सपोज नाम है ए बी, मैंने अलग अलग नामकरण किया है, एंड एवरीथिंग इज वर्किंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर, सी बी ए बी सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ऑब्वियसली दे आर वर्किंग विद इन सम फिक्स्ड बैंड। सपोज तुमको बोल दिया है 876 मेगाहर्ट्ज से लेके 916 मेगाहर्ट्ज के अंदर में तुम्हारा फोन काम करेगा। सपोज दिस इज फॉर 3G और 4G। 3G में ऐसा होता था, 4G में शायद ये बैंड है ही। आई एम नॉट राइटिंग इन एग्जैक्टली 76 की जगह 75 भी हो सकता है, आई डोंट नो, मैं भूल गया हूं एग्जैक्ट रेंज। सो दिस इज माई बैंडविड्थ। तो तुम्हारा जो भी फोन है, जितना लोग भी इस टावर का रेंज में है, वो लोग को इसी बैंड दिया गया है, एंड दिस बैंड हैज बीन डिवाइडेड in different spectrum, smaller spectrum. Suppose किसी को दिया गया है, just example, 76.6 megahertz, किसी को दिया गया है 76.8 megahertz, किसी को दिया गया है 78.9 megahertz. So everybody, many people within the same BTS are having different frequency, but having in the same range. सब लोगों का रेंज इसी में होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट के बीच में ही होगा, बट दिस बैंड इज डिवाइडेड। जैसे केक है, केक को छोटा छोटा हिस्सा में काट दिया और सबको दे दिया, खाओ अपना अपना पार्ट। द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हैपेंस इन नेटवर्किंग आल्सो। सबको अपना अपना फ्रीक्वेंसी छोटा 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 स्मॉलर पार्टीशन कर दिया जाता है। ओके, एंड दिस इज हैपनिंग, एंड और इसका जो डिमांड जो जितना दिन बढ़ रहा है, 4G में डिमांड बहुत बढ़ गया है, 5G में ऐसा डिमांड और बढ़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी क्रंच। माने हमारा रेंज तो बहुत छोटा है, लेकिन जो पब्लिक है, जो डिमांड है, सर्विस का जो डिमांड है, नेटवर्किंग डिमांड, दैट इज ग्रोइंग मोर एंड मोर। तो ज्यादा लोग छोटा छोटा बीटीएस स्टेशन में ज्यादा कॉम्पैक्ट भीड़ हो रहा है, मोर पीपल आर एडिंग, देन व्हाट विल हैपन, एवरीबॉडी वांट्स द सर्विस, नेटवर्किंग सर्विस। तो क्या होगा, तो सेम केक को तुम जितना छोटा करोगे तो क्या होगा, सबके भाग में क्या मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा।
तो 4G and 5G is mainly targeting is aiming to solve this problem. This is called frequency crunch. धीरे धीरे घट रहा है, फ्रीक्वेंसी का डिमांड इतना बढ़ रहा है कि जितना बैंड है दैट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. ठीक है, सबको एट ए टाइम इतना सर्विस देना पॉसिबल नहीं है, तो किसी का वेटिंग में जा रहा है, सर्विस स्लो हो रहा है, तो दिस एरर हो रहा है, दिस थिंग्स आर हैपनिंग. अगर वैसे एरर होगा तो क्या तुम वो नेटवर्क यूज करोगे? नहीं करोगे ना. सो दिस हैपेंस मोस्टली विद वोडाफोन और आइडिया. इसलिए उन लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा था, एंड दैट्स व्हाई दे हैव ग्रुप्ड टुगेदर एंड दे हैव इंक्रीज्ड देयर BTS टावर, एंड दे हैव आल्सो दे आर आल्सो ट्राइंग टू टेक इन रेंट फॉर एयरटेल टावर और जियो टावर. उन लोगों का टावर वो रेंट में ले रहा है. समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका खुद के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इसलिए सर्विस भी कम, लोग कम यूज करते हैं. दिस इज द रीजन, नथिंग एल्स. तो जो 2G बोलते हैं ना, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था 2 नंबर, दैट इज नथिंग बट व्हाट गवर्नमेंट डिड एट दैट टाइम. ये जो इस तरीके का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, इसको तो लाइसेंस बैंड है, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है यूज करने के लिए, तुम नॉर्मली यूज नहीं कर सकते हो. तो हम सिर्फ जैसे अगर तुम्हारे पास ब्लूटूथ है देन इट इज हैविंग 2.4 गीगाहर्ट्ज. दिस इज ओपन, इसके लिए सरकार का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है. दिस इज ओपन फ्रीक्वेंसी बैंड. दिस बैंड इज गिवन टू एवरीवन, नोबडी, इसके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए. दिस आर ओपन. लेकिन कुछ कुछ जो बैंड है 2G 3G 4G 5G, दिस बैंड्स आर सरकारी, मिलिट्री बैंड्स भी है, उसके लिए गवर्नमेंट परमिशन चाहिए. तो कौन परमिशन ले सकता है? Only service providers, Jio, Airtel, BSNL, only this kind of company has the permission. तुम मैं चाहूंगा तो नहीं कर सकता, कोई नहीं देगा. तो ये जो स्पेक्ट्रम था वो क्या किया था उस समय, जो भी हुआ था 2 नंबर, कुछ लोग बोलते हैं, तो क्या हुआ था, दिस स्पेक्ट्रम, सपोज स्पेक्ट्रम किसी कंपनी को बेच दिया था, जिसको गवर्नमेंट बेचता है, तो उससे गवर्नमेंट का बहुत फायदा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे पैसा, बहुत करोड़ों पैसा मिलता है वो बैंड को बेच के. तो जिस बैंड को उसने बेचा था पार्ट पार्ट करके, तो उस बैंड, जिस कंपनी को उसने बेचा था उसका गवर्नमेंट, तो सपोज उस बैंड का उस समय मार्केट का वैल्यू था 5 लाख करोड़. लेकिन 2 नंबर ही करके क्या किया, जो लोग बैंड किया वो 500 करोड़ में वो बैंड बेच दिया, तो गवर्नमेंट का नुकसान हुआ. लेकिन जिसने बेचा उसने बोला मुझे 300 करोड़ दे दो, मैं 500 करोड़ दिखा. दैट इज द कॉन्सेप्ट. ऐसे करके 2 नंबर ही हुआ था. ठीक है, दिस इज द थिंग. तो दिस स्पेक्ट्रम क्रंच. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मल्टीप्लेक्सर. तो मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है? सो इट टेक्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज व्हिच इज कमिंग इनटू द BTS एंड सबको क्या करता है, एक बंडल. बंडल में क्या होता है, मैं देखो झाड़ू होता है, बहुत सारा झाड़ू को हम एक बंडल बनाते हैं ना. हम क्या एक एक झाड़ू से, एक एक पार्ट से झाड़ू बनाना पड़ेगा, देन ओनली इट विल वर्क. सेम थिंग, नहीं तो काम तो होगा एक एक करके, लेकिन जिंदगी लग जाएगा, छोटा छोटा सा जिंदगी लग जाएगा सफाई करने में. अगर बोलेगा, अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक तो एक ही है, और ये आदमी बोलेगा कि मुझे डेटा भेजना है, ये बोलेगा मुझे डेटा, तो कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना. दैट मीन्स तुमको एक सबको पार्ट अपना अपना टाइम में देना पड़ेगा. फिर तुम थोड़ा समय तुम यूज करो, थोड़ा समय मैं यूज करूं, थोड़ा. दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज द मोस्टली यूज्ड मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक. फ्रीक्वेंसी डिवीजन FDM, time division multiplexing, TDM. So this kind of multiplexing access techniques are already available. Frequency को divide किया है, time को divide किया है, phase division multiplexing, amplitude. There are many types of multiplexing technique. Phase, time, frequency. These are the main popular one. Frequency division multiplexing technique के थ्रू सिग्नल जाने के बाद तुम अगर नेटवर्किंग फील्ड में कौन सा एल्गोरिदम डालोगे, जो एल्गोरिदम इस तरीके का सिग्नल को समझ के उसको डेटा को सही तरीके से अरेंज करके भेजता है, उस एल्गोरिदम को बोलता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस एल्गोरिदम. एंड इट इज द पार्ट ऑफ मैक लेयर, नेटवर्किंग लेयर में आता है. डेटा लिंक, फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर. तो द डेटा लिंक लेयर में मैक होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल. वहां पे FDM इज, दीज आर द एल्गोरिदम्स. उसे जो कंप्यूटर में रखना पड़ेगा ना BTS टावर में, तो वो उसके अंदर में एल्गोरिदम है. देन व्हाट इट डज, व्हेनेवर कोई आदमी, जब लोग जो सब्सक्राइबर वहां पे सिग्नल करते भेजते रहते, कस्टमर्स सब्सक्राइबर्स, तो एक साथ अगर 5000 लोगों ने इस एरिया में भेजा तो सबको क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा ना.
So as per the अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी उतना ही सर्विस मिलेगा. तो 5G में दिस सर्विस विल बी मोर बिकॉज वी आर और भी हायर वर्जन ऑफ FDMA, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, OFDMA. ठीक है, दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट मल्टीपल एक्सेस टेक्निक हम उसको बोलते हैं. दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 5G डिवाइसेस. 5G डिवाइस में ये सब रहेगा. वो क्या करेगा, जितना भी लोग कॉम्पैक्ट जितना भी उस एरिया में बढ़े, बट दिस एल्गोरिदम अभी वो डिस्कस नहीं करना है, जस्ट इतना समझ के रखो कि वो तुम जितना भी संख्या बढ़ाओ इस एरिया में, दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम विल गिव almost similar same opportunity to each of the subscriber in this particular region, so that they have the similar kind of access to the network. ऐसा ना हो कि किसी के लिए किसी का एक्सेस में रुकावट हो, सर्विस में खराब हो. तो क्वालिटी ऑफ सर्विस विल बी हायर इन 5G देन 4G में जो है 5G में इससे 100 गुना ज्यादा होगा. So those are because of this kind of technologies. But what is the fundamental of those? The multiplexer. So यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर को सेट किया जाता है. तो जितना भी सिग्नल आता है सबको मिला के एक बंडल बना के उसको पैकेट में डिवाइड करके हम दूसरा जगह फाइबर ऑप्टिक केबल से भेजते हैं. That's it. That's it. It is the concept of multiplexer. इतना ही करता है. So it takes many inputs and it only produces one output. यही मल्टीप्लेक्सर है. तो मैं सिंपल सा डायग्राम कल के भी बना के रखा था. तो इनपुट बहुत लेता है, आउटपुट कितना, एक. डिमल्टीप्लेक्सर में क्या था, इनपुट एक, बहुत आउटपुट. उसका ऑपोजिट है डिमल्टीप्लेक्सर, इनपुट बहुत ज्यादा, आउटपुट सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन आउटपुट. तो इसका ब्लॉक डायग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्वियसली 2 to the power n input and 1 output. This is the block diagram of multiplexer. So don't forget all these logics. मैं बहुत कष्ट करके सब समझा रहा हूं तुम लोगों को. This is the concept of multiplexer. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. Now we will design few multiplexer. You will gradually understand कि मल्टीप्लेक्सर हार्डवेयर में कैसे बनाते हैं. For that we will take help of the book. 190 के आसपास होगा. रोम है, रोम के ऊपर है मल्टी. These are the multiplexer chapter. So see, this is a very big circuit for 2x1 multiplexer. Okay. This is quadruple 2x1. This is 4x1. Different types of multiplexer can be there. तो मैं जैसे बुक में जो है मैं वही शुरू करता हूँ. This particular. देखो, there are many inputs. 4 inputs. Output कितना है? सिर्फ एक. This is the logic. So let us try to understand it कि how it happens. Logic क्या है ना है. तो decoder demultiplexer जैसा था, similar kind of logic will be used but in opposite manner. Here circuit will be little different than others. ठीक है, तो मैं इसको अच्छी तरीके से पहले 4x1 को बनाता हूं क्योंकि 2x1 बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है. तो 4x1 इज स्टैंडर्ड 4x1 मल्टीप्लेक्सर का सर्किट जो होता है. तो लेट अस बिगिन विद इट. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो लेट अस डिजाइन. नॉर्मली क्वेश्चन में आता है कि डिजाइन ए 4x1 मल्टीप्लेक्सर. लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ही आ जाता है. तुम कोई भी क्वेश्चन देखो, सभी जगह में ऐसे क्वेश्चन आता है कि डिजाइन दिस काइंड ऑफ मल्टीप्लेक्सर. जैसे हमने दिखाया कि बहुत एक ही तरीके का डिकोडर तुम 3-4 सेम डिकोडर 2-4 बार यूज करने से बड़ा बड़ा साइज बन जाता है. सिमिलरली मल्टीप्लेक्सर भी वही कर सकता है. सिमिलर एक मल्टीप्लेक्सर तुमने अगर बना दिया, उसको तुम रिपीटेटिव यूज करते करते बड़ा मल्टीप्लेक्सर बना सकते हो. माने अलग अलग मल्टीप्लेक्सर अलग अलग साइज का बनाने का, एक बनाओ, उसको 2-3 बार यूज करो, रिपीटेटिव यूज, देन यू विल क्रिएट अ स्केलेबल, माने बड़ा साइज का मल्टीप्लेक्सर बना सकते हो. ठीक है, तो विल डिजाइन अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर एंड विल सी हाउ इट वर्क्स. ज्यादा कठिन नहीं है मल्टीप्लेक्सर, आसान है. लेट्स स्टार्ट. डिजाइन ए 4x1 मल्टीप्लेक्सर शुरू कर रहे हैं. सो टू डिजाइन ए 4x1 मल्टीप्लेक्सर
हमको पहले देखना पड़ेगा कि नॉर्मली ए मल्टीप्लेक्सर का इनपुट आउटपुट ये सब चीज देखने में कैसे होता है। मैं पहले वो ब्लॉक डायग्राम करता हूं। दिस इज अ जेनेरिक डायग्राम, लेकिन अभी मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा मल्टीप्लेक्सर का लाइक दैट। माने नॉर्मली हम मल्टीप्लेक्सर का जो इनपुट है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, आउटपुट को हम वाई से डिनोट करते हैं। ओके, सिमिलरली हमको कुछ सिलेक्शन और कंट्रोल लाइन चाहिए, सिलेक्शन और कंट्रोल लाइन यहां पे भी चाहिए, बिकॉज मल्टीप्लेक्सर इज ऑपोजिट टू डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर में क्या था, एक इनपुट था, बहुत ज्यादा आउटपुट था, और यहाँ पे कुछ सिलेक्शन लाइन था। इसका ऑपोजिट डिजाइन करना है। मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, बहुत ज्यादा इनपुट है, एक आउटपुट है और कुछ सिलेक्शन है। दीज आर सिलेक्शन लाइन। ठीक है, दिस इज मार्क्स, दिस इज डी मार्क्स। एक ही चीज है, ऑपोजिट तरीके से, एक ही आउटपुट, बहुत ज्यादा इनपुट। तो आउटपुट होता है एक, सो इट इज वाई। इनपुट बहुत हो सकता है, तो यू कैन राइट आई स्मॉल आई, दैट इज I0, I1, I2 इंडेक्स वैल्यू। सिलेक्शन लाइन को हम एस आई से डिनोट करते हैं। डोंट फॉरगेट दिस, दिस इज अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन। एस का मतलब सिलेक्शन लाइन, वाई मतलब आउटपुट। हाँ, तुम अपना मर्जी से डाल सकते हो, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड वे, एंड कैपिटल आई रिप्रेजेंट्स इनपुट, पर्टिकुलर इनपुट। ठीक है ना, तो लेट अस स्टार्ट। कोई भी चीज बनाने से पहले हमको क्या बनाना पड़ता है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ट्रूथ टेबल ओनली। ये तो हमको पता है। सो ऑब्वियसली यू हैव टू फर्स्ट डिजाइन द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो ट्रूथ टेबल में हमको पता है कि इस मल्टीप्लेक्सर में इनपुट कितना है भाई, हाउ मेनी इनपुट, 4 इनपुट। आउटपुट तो हमेशा 1 है, तो आउटपुट को पूछना भी नहीं है। सो आउटपुट इज ऑलवेज 1, सो इट इज वाई। इनपुट कितना है, 4। इनपुट को कैसे लिखूंगा, आई से। ठीक है, so I will have some input and I will send those input। मैं फिर से तुमको समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सर्किट बनाना शुरू कर दिया तो भूल जाऊंगा। इसका मतलब है, तुम ऐसे करके सोचो कि एक घर है, उस करके सोचो आसानी से कि दीज आर द डोर्स। तो घुसने के लिए बहुत सारा दरवाजा है, निकालने के लिए सिर्फ एक डोर है। आउटपुट माने बाहर जाने का एक रास्ता है, अंदर जाने का बहुत सारा रास्ता है, एक ही रूम के, सपोज इज अ रूम। तो क्या हो सकता है, एंड अनदर लॉजिक इज, यहाँ पे कुछ सिलेक्शन लाइन है। सिलेक्शन लाइन मतलब उसका हम बोलते हैं दरवान, चौकीदार। वो क्या करेगा, वो देखेगा कि कौन सा दरवाजा को खोलना है, ताला मारना है, खोलना है। ये सिलेक्शन लाइन का काम है, दरवान का काम है। वो जिस दरवाजा को खोलेगा, इनपुट उसी रास्ते से निकल के आउटपुट से निकल जाएगा। समझ में आया? फिर से समझो कि एक यहाँ पे दरवान है, 2, 3 जन, 4 जन, 20 जन, कितने भी दरवान रख सकते हो। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा दरवान चाहिए है ना। छोटा रूम तो कम दरवान चाहिए, बड़ा बिल्डिंग तो ज्यादा पावर, ज्यादा लोग चाहिए दरवाजा खोलने बंद करने के लिए। सो यू थिंक लाइक दैट। सिलेक्शन लाइन मतलब दीज आर द चौकीदार्स। ठीक है, उन लोगों का काम है दरवाजा को खोलना और बंद करना, और कुछ नहीं काम है। कौन सा दरवाजा को, इनपुट दरवाजा को। आउटपुट दरवाजा वो खोल बंद नहीं कर सकता है। दे कैन ओनली कंट्रोल द इनपुट डोर्स। डीमल्टीप्लेक्सर में क्या था, डीमल्टीप्लेक्सर में भी सिलेक्शन लाइन था, बट दे वर कंट्रोलिंग आउटपुट डोर्स। मैं जो बोल रहा हूं लिख के रखना, अगर याद भी कर सकते तो वेरी गुड। डीमल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइन कंट्रोल द आउटपुट, है ना, कि कौन सा आउटपुट से सिग्नल जाएगा। मल्टीप्लेक्सर उल्टा होगा। मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, सिलेक्शन विल कंट्रोल इनपुट, कि कौन सा इनपुट को मैं दरवाजा को खोलूंगा, जिस दरवाजा को खोलूंगा उसी दरवाजा का इनपुट को आउटपुट से जाएगा। बस उतना ही समझो, इससे ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है। जो वाला दरवाजा मैं खोलूंगा इनपुट का, वही दरवाजा से इनपुट होगा। एक ही दरवाजा होगा, उसी से लोग घुसेगा ना। निकलने के लिए तो एक ही रास्ता है, तो उसी से ही निकलना पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं, तो इसको कंट्रोल करने का भी जरूरत नहीं है। देयर इज ओनली वन वे टू गो आउट, देयर आर मेनी वेज टू कम इनसाइड। ओके, तो लेट्स, अभी इतना समझ में आ गया तो वही करते हैं। सो ट्रूथ टेबल में जो मेन चीज होता है, जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, दैट इज द सिलेक्शन लाइंस। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन लाइन मल्टीप्लेक्सर में क्या करता है, मैं लिख के रखता हूं। सिलेक्शन लाइंस
these are nothing but control lines, controls input, बस इतना याद रखो. Selection lines control input. तो इनपुट कितना है हमारा अभी इन दिस एग्जांपल, कितना बनाना पड़ेगा? 4 इनपुट एंड 1 आउटपुट. 4 इनपुट है तो 4 को मैं अगर इस हमारा जेनेरिक स्ट्रक्चर के साथ अगर मैच करेंगे, इस जेनेरिक स्ट्रक्चर को देखो, इस जेनेरिक स्ट्रक्चर में इनपुट कितना होता है? 2 to the power n, आउटपुट 1. तो आउटपुट 1 है, यहां पे भी 1 है, तो कोई टेंशन नहीं है. नाउ यू ट्राई टू मैच दैट 4 इज इक्वल्स टू द पावर n, है या नहीं? इस बॉक्स के साथ मैचिंग कर रहा. ये इसको याद रखना पड़ेगा. मार्क्स का बॉक्स कैसा होता है? 2 to the power n, इतना इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है. तो जो हमको सर्किट बनाना है, आउटपुट एक है तो मुझे टेंशन नहीं लेना है. इनपुट कितना है भाई? 4 इनपुट. मुझे n का वैल्यू जानना है. सो दैट मींस 2 to the power n is equals to 4. दैट मींस n is equals to 2. समझ में आया? 2 to the power n is equals to 4, n is equals to 2. कैसे आता है? पता है ये सब चीज? log बोथ साइड यू log 2 से दोनों साइड में log बनाओ. log डालने से n क्या होगा? n will be log 4 base 2. 2 को क्या लिख सकता है? 2 to the power square. तो 2 सामने आएगा, है ना? ये सब बोल नहीं रहा, बस हो गया. तो n is equals to 2 कैसे है? मैं समझा दिया. तो जितना n है उतना सिलेक्शन लाइन है. मैं वो भी लिख दिया यहां पे, देखो. सिलेक्शन लाइन कंट्रोल इनपुट. सिलेक्शन लाइन कितना होगा? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ n. तो मैंने n फाइंड करके दिखाया तुम लोगों को. इन दिस एग्जांपल व्हाट इज द n? n इज 2 इन दिस एग्जांपल. तो इस एग्जांपल में मुझे कितना सिलेक्शन लाइन चाहिए? 2 सिलेक्शन लाइन चाहिए. n इज इक्वल्स टू 2. तो हाउ मेनी सिलेक्शन लाइन वी रिक्वायर इन दिस एग्जांपल? 2 सिलेक्शन लाइन चाहिए. सिलेक्शन लाइन को मैं क्या लिखता हूं? S0 S1. आई नीड 2 सिलेक्शन लाइन. तो पहला वाला सिलेक्शन लाइन का नाम होगा S0 स्मॉल में, दूसरा वाला का नाम होगा S1. ठीक है? सो यू नीड 2 सिलेक्शन लाइंस एंड 4 इनपुट्स. तो इसका अगर मैं बॉक्स डायग्राम बनाऊंगा, देखने में कुछ ऐसा होगा. इट हैज 2 सिलेक्शन लाइंस. अंदर में नहीं लिखूंगा, बाहर की तरफ लिखूंगा. S0 S1, एक आउटपुट लाइन. दिस इज वाई 4 इनपुट लाइन. हमेशा ऐसे करके ड्राइंग करना है. ऊपर वाला होगा I0, I मतलब इनपुट मैंने बोला था, I1, I2, I3. So there are 4 inputs and 1 output and 2 selection line. So this is the block diagram of this specific marks. 4 cross X marks, 1 marks को हमेशा ऐसे बॉक्स में दिखाना है. ऐसे दिखाने से पता चल जाएगा कि तुम एक मार्क्स के बारे में बात कर रहे हो. अंदर का सर्किट ना बनाने से भी चलेगा. ओके, बट वी विल डिजाइन द सर्किट. हमको देख, दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम. तो इस बक्सा के अंदर क्या है वो देखना जरूरी है. तो वो तो हम बनाएंगे जरूर. सो कुछ देखने में ऐसा होगा. तो इनपुट लेफ्ट में होगा ऑब्वियसली, आउटपुट राइट में ऑब्वियसली, एंड सिलेक्शन लाइन इन बिटवीन. सिलेक्शन लाइन किसको कंट्रोल करेगा? लिखा है मैंने, सिलेक्शन लाइन कंट्रोल द इनपुट. सिलेक्शन लाइन क्या है? दिस इज योर वॉचमैन. वॉचमैन क्या करेगा? इनपुट का जो दरवाजा, दिस डोर को खुलेगा, उसी डोर से ही लोग घुसेगा. और आउटपुट देखिए, एक ही रास्ते से निकलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है? तो ट्रूथ टेबल का लॉजिक कुछ ऐसा होता है. इफ सिलेक्शन लाइन वैल्यू S1 को हमेशा लेफ्ट में लिखना है. रिमेंबर, अगर तुम्हारे पास 3 सिलेक्शन लाइन किसी को बोल रहा है बनाने के लिए, ऐसे लिखना है S0 S1 S2. अगर बोलेगा 4 सिलेक्शन लाइन तो S3 S4 ऐसे करके लिखना है. समझ में आया? ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सिलेक्शन लाइन हमेशा छोटा, 0 हमेशा राइट में होगा, उसके बाद एक एक करके लेफ्ट में शिफ्ट करना है. दिस इज द रूल ऑफ राइटिंग. सिमिलरली ड्राइंग में भी S0 को राइट साइड में रखना है, S1 को लेफ्ट में रखना है. ट्रूथ टेबल में जैसे जिसे लिखना है, ड्राइंग में वैसे वैसे लिखना है. ट्रूथ टेबल में S1 को लेफ्ट में रखा है, तो ड्राइंग में भी S1 को लेफ्ट में ही रखना है. डोंट एक्सचेंज द पोजीशन. ठीक है? क्लियर हो गया कैसे लिखना है? यहाँ पे 2 है तो मैं S0 से स्टार्ट कर रहा हूं, देन S1. अगर 3 होता तो लिखना पड़ेगा S0 देन S1 देन लेफ्ट में लिखेंगे S2. सिमिलरली नीचे में भी S0 S1 S2 लिखना पड़ेगा. क्लियर? नाउ इन दिस एग्जांपल मैं फिर से शुरू कर रहा हूं. 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है.
1 क्या है? आउटपुट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही है, वेरी गुड। इनपुट कितना है? 4। सो मैंने डायग्राम में लिखा है 1 2 3 4, 4 इनपुट। वेरी गुड, 4 इनपुट्स है, दैट इज व्हाई इट इज रिटन 4 क्रॉस 1। लेकिन 4 को कंट्रोल कौन करेगा? इनपुट को। इनपुट इज कंट्रोल बाय सिलेक्शन लाइन। हाउ मेनी सिलेक्शन यू रिक्वायर? यू रिक्वायर n सिलेक्शन लाइन। n कैसे आएगा? n will come from 2 to the power n। जैसे मैंने 2 to the power n is represents the input, 4 also represents the input, that means 2 to the power n is equals to 4, that means n is equals to 2, क्योंकि 2 to the power 2 is 4, that means how many selection you require? 2। ऐसे करके कैलकुलेट करना है, वैल्यू को देख के याद रखना। तो अगर यहाँ पे 8 क्रॉस 1 होता तो कितना होता? 3, because 2 to the power 3 is 8, so how many selection line? 3। अगर 16 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है तो कितना सिलेक्शन लाइन चाहिए? 4, बिकॉज 16 इज इक्वल्स टू 2 to the power 4। क्लियर? दैट मींस अगर तुम दरवान, यहाँ पे दो वॉचमैन है, 2 वॉचमैन एट ए टाइम एक ही दरवाजा को खोल सकता है, दो वॉचमैन 2 दरवाजा नहीं खोल सकता। तो 2 दरवाजा, सपोज आई एम राइटिंग 0 0, दोनों का वैल्यू अगर 0 0 है, इसका मतलब क्या? कौन सा दरवाजा खुलेगा? फर्स्ट दरवाजा, टॉप मोस्ट दरवाजा खुलेगा। टॉप दरवाजा का वैल्यू क्या है? I0। I0 इस रास्ता घर के अंदर होते हुए आउटपुट के बाहर चला जाएगा। तो आउटपुट में कौन सा वैल्यू जाएगा? I0। सिमिलरली 0 1 अगर रखोगे, S1 S0 का वैल्यू अगर 0 1 डालोगे तो क्या होगा? उसका मतलब 1 नंबर दरवाजा को ओपन करना है इनपुट में। 1 नंबर दरवाजा में कौन वेट कर रहा है? I1 वेट कर रहा है, तो I1 घुसेगा, Y से निकल जाएगा। सिमिलरली 1 0 अगर होगा, उसका मतलब 2 नंबर 0 1 2, ये वाला ऑन रहेगा, थर्ड डोर विल बी ओपन। थर्ड डोर में हु इज वेटिंग? I2 इज वेटिंग, I2 विल गो आउट। और लास्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? बोथ आर 1 1, तो ये बोथ आर 1 1, उसका मतलब लास्ट फोर्थ डोर में हु इज वेटिंग? I3 इज वेटिंग, सो I3 विल गो आउट। क्लियर हो गया दिमाग में? जो जिस दरवाजे में जो वेट कर रहा है वो दरवाजे के अंदर से हाथ चलते चलते बाहर निकल जाएगा, दैट्स इट। बाकी लोग नहीं निकलेगा। एट ए टाइम 1 विल कम इनसाइड एंड 1 विल गो आउट। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्क्स। तो जैसा मार्क्स होगा वैसे अपना ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वी विल डिजाइन द सर्किट। तो सर्किट डिजाइनिंग इज वेरी इजी। Here, see here, as we are designing the 4x1 multiplexer, again you have to think that we are designing the 4x1 multiplexer, so we need to depend on 2 things. One is called AND gate and that is called OR gate. तो मल्टीप्लेक्सर में एक OR gate होता है and 2 to the power n AND gate होता है। तो मैं फॉर्मूला का जैसा लिख दिया, डोंट फॉरगेट इट। मल्टीप्लेक्सर में कोई पूछेगा भाई एक मल्टीप्लेक्सर बनाना है मुझे, कितना OR गेट चाहिए? तुम बोलोगे एक ही OR गेट चाहिए, बट दैट इज थियोरेटिकली नॉट प्रैक्टिकली। मैं थियोरेटिकली लिख देता हूं। थियोरेटिकली मैंने एक इनपुट में तुम 10 इनपुट डालो, मैंने ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकली तो नहीं होगा ना, वी आर डिजाइनिंग थियोरेटिकली। सो थियोरेटिकली यू विल से दैट 1 मल्टीप्लेक्सर टेक्स बनाना है, तुमको एक ही OR गेट चाहिए और बहुत सारे एंड गेट चाहिए, नॉट गेट भी चाहिए, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। तो कितना एंड गेट चाहिए? जितना तुम्हारे इनपुट साइज है 2 to the power n, ठीक है। इन दिस केस 2 to the power n इक्वल्स टू 4। इनपुट जितना है उतना एंड गेट चाहिए। सो हाउ मेनी इनपुट? आई हैव 4 इनपुट, I0 I1, तो मुझे कितना एंड गेट चाहिए? 4। 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर? तो मुझे कितना एंड गेट चाहिए? 2 to the power n। 2 to the power मतलब क्या? अभी इन दिस एग्जांपल 4 इज माय इनपुट, 1 इज माय आउटपुट, तो 4 एंड गेट्स चाहिए। क्लियर? ये जो एंड गेट्स है, खाली एंड गेट होने से होगा नहीं, मुझे सिलेक्शन लाइन भी चाहिए भाई। तो उसको सिलेक्शन लाइन को नीचे ऐसे लिखना है, S0 S1, जैसे इस ब्लॉक डायग्राम में है, जैसे ट्रूथ टेबल में है। S0 इज राइट टू दी S1, तो S0 को S1 के राइट दाहिने तरफ ही लिखना है सर्किट में, नहीं तो सब उल्टा पल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट, तो मुझे 0 1 बनाना है, दैट मींस ऑब्वियसली आई नीड टू पुट सम नॉट गेट।
नहीं तो 0 1 बनेगा कैसे, है ना। सो लेट्स डिजाइन। तो 0 0 का मतलब क्या है, मैंने बोला सबसे ऊपर वाला दरवाजा, ऊपर से कैलकुलेशन करना पड़ता है मल्टीप्लेक्सर में। सबसे टॉप दरवाजा को हम बोलते हैं 0, नेक्स्ट दरवाजा को बोलते हैं 1, नेक्स्ट 2 3 ऐसे करके आता है। सो टॉप मोस्ट इज द 0 स्टार्टिंग लोकेशन, ठीक है। तो इफ बोथ आर 0 0, S1 का वैल्यू 0, S0 का वैल्यू 0 का मतलब क्या है, S1 बार S0 बार। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को यहां पे डाल देना है, S1 बार को डाल दिया, S0 बार को डाल दिया। सो इट इज 0 0, है या नहीं। दिस इज S1 बार, S0 बार। 0 का मतलब क्या है, S1 बार, इस 0 का मतलब क्या है, S0 बार। तो S1 बार S0 बार को कनेक्शन कर दिया, ठीक है। सो 0 0 मीन्स टॉप, फर्स्ट सबसे ऊपर वाला को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज 0 1। सो 0 मतलब क्या, S1 बार एंड S0 हो गया। नेक्स्ट 1 0, 1 0 मीन्स S1 S0 बार, S1 S0 बार, डन, नाइस। एंड द लास्ट S1 S0, दोनों ही 1 1 है। तो S1 एंड S0, यू गॉट द पॉइंट। कैसे हमने डिजाइन किया, सिलेक्शन लाइन को अपना हिसाब से उस पर्टिकुलर एंड गेट में इनपुट डालना है। तुमको ऐसे करके रखना है कि दिस इज 0 1 2 3, तो 0 कैसे होगा, 0 0, नेक्स्ट 0 1 1 0 1 1। 0 0 का मतलब क्या है, S1 बार S0 बार। तो बार बार मतलब नॉट गेट से बार आएगा, ऐसे करके कैलकुलेशन करके डाल देना है, सिंपल हिसाब से नॉर्मली डाल दो। आफ्टर यू पुट एवरीथिंग, next job is to put the input lines. How many input line I have? 4 input line. तो first वाला जो input है that will go to first AND gate. Second वाला जो input है that will go to second AND gate. Third वाला जो input है that will go to third AND gate. Fourth वाला जो input है that will go to फोर्थ। सो टोटल 4 इनपुट ऐसे करके कनेक्शन करना पड़ता है, एंड गेट में कनेक्शन करना पड़ता है। ओके, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, हर एक एंड गेट से एक आउटपुट आएगा, चारों से एक आउटपुट आएगा, एंड ऑल दोज आउटपुट विल बी पुट इनसाइड ए लार्ज OR गेट, और OR गेट से जो फाइनल आउटपुट आएगा that is the Y. This is your 4x1 marks का सर्किट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। This is all about the 4x1 marks. तो इसका अगर हम सर्किट में माने अभी बनाना चाहते हैं, if you want to make it in practical, तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को पहले एक OR गेट में डाल देना है, तीसरा को फिर से और एक OR गेट में डाल देना है, चौथा को फिर से, है ना, अलग अलग करके किया। दिस इज फॉर प्रैक्टिकल डिजाइन। थियोरेटिकली तो सबको एक ही में डालने से होगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो मुझे 2 इनपुट ही मिलेगा ना एक साथ, 4 पुट तो मिलेगा नहीं। तो और ये भी कर सकते हो, अनदर इजी थिंग यू कैन डू, इस दोनों को एक साथ डाल दो, फिर लास्ट में दोनों को। दिस इज अनदर वेरी गुड सॉल्यूशन। सो इन दिस वे यू कैन डिजाइन, दिस इज फॉर प्रैक्टिकल डिजाइन। ट्राई दिस एट होम ऑन द सिमुलेशन, ऐसे करके डिजाइन करना, ठीक है, दो दो करके। अल्टीमेटली सबको ऐड करना है, तो प्रैक्टिकली तो दो दो करके करना है, तो ऐसे करके करोगे। लेकिन theoretically if you want to design it, then what you have to do, you have to take 4 at a time and put inside an OR gate. Theoretical design तो आसान है, एक में डाल दिया खत्म। ओके, सो दिस इज द 4x1 max, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ द क्वेश्चन जो आता है गेट नेट वगैरह में, उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आता है कि इंप्लीमेंट ए फंक्शन यूजिंग max। मैं बड़ा बड़ा करके एक दिन लिख दिया था कि डिकोडर कैन इंप्लीमेंट एनी फंक्शन, एनी बुलियन फंक्शन, याद है। सेम थिंग इज ट्रू फॉर मल्टीप्लेक्सर, मार्क्स कैन इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन। समझ में आया, जैसे डिकोडर कैन इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन, सिमिलरली मार्क्स का भी वही पावर है, सेम पावर।
marks has the same power as of decoder. Marks can also implement any boolean function. तो जो बुलियन फंक्शन डिकोडर इंप्लीमेंट कर सकता है, सेम बुलियन फंक्शन मार्क्स भी इंप्लीमेंट कर सकता है. देखा कितना पावरफुल चीज है. तो ऐसा और भी चीज है, बाद में डिस्कस करते करते समझ में आ जाएगा कि हाउ दिस हैपेंस. ठीक है. तो मार्क्स कैन इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन. आज मैं नहीं करूंगा और ज्यादा. सो दिस इज 4x1 मल्टीप्लेक्सर. मैंने थोड़ा सा तुम लोगों को डिजाइन करके दिया है. इंप्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट दिन करेंगे, सैटरडे. सो लेट अस डिजाइन अनदर मार्क्स, दैट इज 8x1 मार्क्स. और मैंने ये भी बोला था कि जैसे डिकोडर, सेम साइज का डिकोडर तुम बहुत सारा एक के बाद एक लगा सकते हो, उससे एक बड़ा डिकोडर बन सकता है. सिमिलरली सेम साइज का मार्क्स तुम एक के बाद एक लगा सकते हो, उससे तुम बड़ा बड़ा, जैसे अभी हमने 4x1 मार्क्स डिजाइन किया था. सो ऐसे दो 4x1 मार्क्स करने से आएगा 8x1 मार्क्स. क्लियर? सिमिलरली समझ में आया? सिमिलरली 4x1 मार्क्स करने से आएगा 16x1 मार्क्स. वो कैसे मैं सिखाऊंगा बाद में. So I will design another 8x1 marks today. So let us do that. Just circuit design करेंगे और कुछ नहीं. So एक है आउटपुट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो now 8 is equals to the power n. तो how many n का वैल्यू अभी क्या होगा? It will be 3. तो how many selection line you require to design 8x1 marks? You need 3 selection line. To the power 3 is 8, that's why 3 selection lines. ठीक है. तो मैं इसका ट्रूथ टेबल पहले बनाऊंगा. मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं यार. ये संभव हो रहा है बिकॉज ये ऑनलाइन क्लास हो रहा है. अगर रेगुलर क्लास होता तो मैं इतना डिटेल में जाता ही नहीं, जस्ट बोल के चला जाता, तुमको खुद से पढ़ना पड़ता. सो इन दैट केस you need 3 selection lines. So you have to write like this: S0, S1, S2 and Y as output. तो 3 सिलेक्शन लाइन से इनपुट क्या क्या हो सकता है? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 4 5. सिंपल है, तो पता ही है तुम लोगों को. 7. सिमिलरली आउटपुट क्या आएगा? 0 0 का मतलब I0, नेक्स्ट का मतलब I1, नेक्स्ट का मतलब I2. जस्ट सिंपल पैटर्न. I3, I4, I5, I6, I7. I रिप्रेजेंट्स इनपुट, S रिप्रेजेंट सिलेक्शन लाइन. हो गया. तो इसका ब्लॉक डायग्राम देखने में कैसा लगेगा? ब्लॉक डायग्राम देखने में 8x1 मार्क्स कुछ ऐसा. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 S0, S1, S2, एक आउटपुट. और ये सब होगा I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. So this will be the block diagram of 8x1 marks. अभी हमको देखना है इस बॉक्स के अंदर में क्या है. ओके, सो लेट्स सी. जैसे मैंने बोला, हाउ मेनी एंड गेट यू रिक्वायर टू द पावर n. टू द पावर n का मतलब क्या है? 8. माने टू द पावर n इज इक्वल्स टू 8, इसलिए ना n इज इक्वल्स टू 3 हुआ. सो 8 एंड गेट्स चाहिए. तो 8 एंड गेट बनाओ. 1 2 3 4 5 6 7. जगह नहीं है, ऊपर लगता हूं. 8 हो गया. हाउ मेनी सिलेक्शन लाइन? 3 सिलेक्शन लाइन. S0, S1, S2 और सबके साथ एक नॉट गेट. भाई लगाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. ठीक है, मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूं, टेंशन मत करो. सो फर्स्ट वन इज माई 0th. 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 0 0 0 0 का मतलब क्या है? 0 0 0 हो गया. नेक्स्ट इज 0 0 1, दैट इज S2 और S1 में यही होगा, सेम वैल्यू विल गो. एंड S0 का वैल्यू होगा 1, तो S0 का वैल्यू होगा 1, सो इट विल गो हियर. 1 का लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं और 0 का लाइन को ब्लैक से कर दिया है. ठीक है,
नेक्स्ट है 0 1 0, तो S2 का लाइन 0, सो 0 का लाइन में डाल दिया। S1 का वैल्यू 1, तो S1 का लाइन ब्लू है 1, तो इसको लेके 1। S0 का 0, दैट इज S बार, ब्लैक लाइन कनेक्शन। ठीक है, सिमिलरली 0 1 1, S2 का वैल्यू 0, तो S2 का वैल्यू 0, so I'm taking from here, S2 का वैल्यू 0, S1 का वैल्यू 1, S0 का वैल्यू 1, तो S1 का वैल्यू 1 माने ब्लू लाइन, S1 S0 का वैल्यू भी 1। सुंदर। सिमिलरली नेक्स्ट का क्या होगा, अभी होगा 1 0 0, तो 1 का मतलब क्या है, S2 का वैल्यू 1, तो ये जाएगा 1। उसके बाद 0 0, S1 का भी 0, S2 का भी 0, तो S1 का भी 0, तो 0 बार वाला लाइन जाएगा, डन। नेक्स्ट होगा 1 0 1, 1 माने ग्रीन, ए ब्लू वाला लाइन, तो 1, देन 0 1, 0 मतलब ब्लैक, एंड 1 1 मतलब ब्लू। नेक्स्ट इज 1 1 0, so this 1, then 1, then 0, black line, and the last one 1 1 1, so first का 1 जाएगा, सेकेंड का 1 जाएगा, थर्ड का 1 जाएगा। सी आई हैव ड्रॉन इट। लास्ट में क्या चाहिए, यू हैव टू पुट द इनपुट, तो हाउ मेनी इनपुट आई हैव, 8 इनपुट्स, सो I0 पहले गया, I1 दूसरा पे गया, I2 तीसरा पे गया, I3 चौथा पे गया, I4 इस पे गया, I5 इस पे गया, I6 इस पे गया, I7 इस पे गया, डन। इतना ही तो है। और लास्ट में क्या करना है, सब एन गेट से एक आउटपुट आएगा। आई एम डिजाइनिंग थियोरेटिकली नॉट प्रैक्टिकली, ठीक है। सबको लेके क्या करना है, एक बड़ा वाला और गेट में डाल देना है, दैट इज योर, समझ में आया, दिस इज द सर्किट, दिस इज द 8x1 मल्टीप्लेक्सर सर्किट। तो मैंने तुमको सर्किट डिजाइन करना दिखा दिया कि कैसे सर्किट डिजाइन करते हैं, सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो फर्स्ट पोर्शन जो होता है सिलेक्शन लाइन और एंड गेट डालना, वो कुछ डिकोडर जैसे ही है ना, कि 0 0 लाइन को कनेक्ट करना एंड गेट में, पकड़ के एंड गेट में वैल्यू डालना पड़ता है। सिलेक्ट 0 0 0 0 1 0 0 1, 0 का मतलब बार, 1 का मतलब डायरेक्ट, ठीक है। बार मतलब नॉट गेट से आएगा, नॉट गेट से लाइन आएगा, दैट इज बार। जो नॉट गेट से नहीं आएगा दैट इज डायरेक्ट। तो पहले उस तरीके से 0 1 2 3 4 ऐसे 7 तक बनाना है, हर एक एंड गेट में डाल देना है। आफ्टर दैट जितना इनपुट है उसको अलग अलग, सबको एक एक के साथ एंड गेट के साथ एक एक अलग अलग इनपुट लगा देना है। फिर सब एंड गेट का इनपुट को एक साथ, दिस इज कॉल्ड बंडलिंग अप, बंडल किया है यहाँ पे, देखा, सबको बंडल करके एक साथ जोड़ के एक ही आउटपुट से निकाल रहा है, दिस इज द बंडलिंग ऑपरेशन। बंडल करके भेज रहा है, सबको बंडल करके एक में भेज रहा है, सिंगल। सो दिस इज द सर्किट डिजाइनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ऐसे सर्किट डिजाइनिंग करते हैं। मल्टीप्लेक्सर खत्म नहीं हुआ अभी तक, नेक्स्ट डे भी मल्टीप्लेक्सर करना है, सम पोर्शन इज लेफ्ट। तो जस्ट ट्राई दिस थिंग्स एट योर होम। कठिन नहीं है, आई नो कि तुम लोगों का हाँ थोड़ा दिमाग में ज्यादा प्रेशर हो रहा है, लेकिन रास्ता भी नहीं है, तुमको सीखना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। सो जितना हो सके ट्राई टू लर्न, और दिमाग में लर्न मतलब लर्न भी करना है और रट्टा नहीं मारना है, लॉजिकली समझना है कि लॉजिकली कैसे कर रहे हैं, व्हाट इज द टेक्निकल स्टेप्स। मैं रट्टा नहीं मारा कभी, लॉजिकली समझ रहा हूं कि ऐसे 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 करके होता है, लॉजिकल स्टेप्स, इससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मैथ करेंगे, ठीक है।
हो गया बबुआ।